हेलो क्लास 11th। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कर रहे हैं। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की थर्ड क्लास में ले रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए थे, डाउट्स भी लिए थे। आज मैं थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स थर्ड एक्सरसाइज के मैं आपको एक बार लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो एक बार रिवाइज करके जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था अगर एपी में तीन टर्म्स का सम गिवन हो तो हम तीन टर्म्स लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। यहां पर याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस d आता है, ठीक है। और अगर हमें एपी की चार टर्म्स का सम गिवन हो तो आई हैव टोल्ड यू दैट द फोर टर्म्स विल बी a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी. So these are the four terms which you will take whenever the sum of four terms of AP is given. Similarly, if you have the sum of five terms, then these five terms will be taken: a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. Here the common difference is t2 minus t1. t2 minus t1 will come as d, and in the four terms the common difference will be 2d. Always remember, when you find out the value of t2 minus t1, it will come out as 2d. So यहाँ पर आकर के स्टूडेंट्स काफी गलती करते हैं, क्योंकि एक रेयर केस है, स्पेशल केस है कि चार टर्म्स के केस में कॉमन डिफरेंस d नहीं होता, कॉमन डिफरेंस 2d होता है। याद रखिएगा इसको। चलिए, अब मैं सेकंड एक्सरसाइज, इनफैक्ट थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को स्टार्ट कराता हूँ। चलिए, तो आप लोगों को मैंने शीट ऑलरेडी दी हुई है, मैंने अपलोड कर दी है शीट, और आई होप आप सबने शीट देख ली होगी। तो उसी शीट के क्वेश्चंस हैं, और जब भी आप क्वेश्चंस घर पर बैठ के करें, यानी कि मेरे लेक्चर्स के थ्रू जब भी आप क्वेश्चन करें तो पहले क्वेश्चन जरूर रीड कर लीजिएगा, डायरेक्टली आंसर्स पर मत आइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिस इज एक्सरसाइज 19.3. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ थ्री टर्म्स इज 21. तीन टर्म्स का सम 21 है। अब क्योंकि हमें तीन टर्म्स का सम गिवन है, तो हम तीन टर्म्स में फर्स्ट टर्म लेंगे a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी. नाउ द सम इज 21. The sum is 21. So if you add these three terms, you will directly get the value of a as 7. So 3 is equals to 21. A will be 7. आगे क्वेश्चन में लिखा है the product of the first and the third term. First और third term का product, that is a minus d into a plus d. First और third term का product exceeds the second term by 6. Question read जरूर करिएगा. Exceeds the second term by 6 means second term is a plus 6. So it means exceeds the second term by 6. Exceeds means ज़्यादा है second term से, कितना? 6 ज़्यादा है. Now a minus d into a plus d is a square minus d square is equals to a plus 6. So a square is 49 minus d square is equals to 7 plus 6, 13. So 13 इधर लेकर के आइए, d square right hand side में. So 9 minus 3 is 6, 4 minus 1 is 3. So d square is 36, d will as 6. The value of d is 6. So what is the first term? First term is a minus d, that is 7 minus 6 will be 1. What is the second term? A, that is 7, and the third term is 7 plus 6, यानी कि 13. So these are the three terms of AP whose sum is 21, and the second conditions also holds true. You can verify. Okay. So this is the answer for the first question. आगे बढ़ते हैं बेटा. Second question आप लोग read करिए और उसके बाद समझिएगा. So second question में लिखा है three numbers are in AP and the sum of these numbers is 27. तीन numbers AP में है, इनका sum 27 है. So this is the second question. Again, if the sum is given, then the three terms will be a minus d, a and a plus d. The sum is given as 27. So the value of a will be 9, because 3 is equals to 27. So the value of a will automatically be 9. And the product is 648. So the product is a minus d multiply by a multiply by a plus d. The product is 648. So 9 minus d into 9 plus d, I have put it the value of a here. 9 sevens are 63, 9 twos are 18, 72. 9 minus d into 9 plus d will be 81 minus d square is equals to 72. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा. 81 minus 72 is 9 is equals to d square. So the value of d is 3. You can take it as plus minus 3. If you don't take it, then there will be one answer. If you take it as plus minus 3, there will be two answers. ठीक है.
चलिए हम +3 लेकर के सॉल्व करते हैं. So the first term is 9 minus d, 9 minus 3 that is 6. Second term is a, that is 9, and 9 plus 3 is 12. So 6 plus 3 9, 9 plus 3 is 12. Hence these three terms are in AP which satisfy the given two conditions. Okay, चलिए third question start करते हैं. Before starting third question कुछ आप लोगों से बात कर लें. गर्ल्स जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था दैट आई हैव क्रिएटेड अ क्लासरूम. मैं जो भी आपको शीट्स करा रहा हूँ इस समय जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने क्लासरूम में. मैंने आपको कोड भी दे दिया है और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ या बाकी के फ्रेंड्स के साथ जो डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं जैसे पीटर्स या एंथनीज या पॉल्स, in whatever CBSE or ISC school, so do share this information with your school friends that they can also continue their studies with my video lectures. And what they have to do, they just have to call me on my WhatsApp number 98970 89424. They can WhatsApp me that they want to join the batch or they can directly call me that they wants to join my batch. So I will tell them the formalities, I will give them the code so that they can continue their studies. Okay, if you don't have book, there's no issues. मैं आप लोगों को आर.डी. शर्मा, ओ.पी. मल्होत्रा या डिफरेंट एम.एल. अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा. अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो बिलीव मी कि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो किसी भी तरीके से कमी रहे. हर चीज आप लोगों की बहुत क्लियर तरीके से मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा. आप लोगों की लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम पूछी थी वो मैंने आज के वीडियो लेक्चर में क्लियर करी थी सबसे पहले और फिर मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था. सो व्हाटएवर योर प्रॉब्लम आई विल फर्स्ट क्लियर योर डाउट्स, then I will start the next exercise or next chapter. So do share this information with your friends also. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन में आते हैं. थर्ड क्वेश्चन में लिखा है बेटा फाइंड द फोर नंबर्स इन एपी. सो फोर नंबर्स इन एपी वी हैव टू फाइंड आउट whose sum is 50. अब देखिए चार नंबर्स का सम हमें गिवन है 50. तो चार टर्म्स हम लेंगे a minus 3d, a minus d, a plus d and fourth term will be a plus 3d. याद रखिएगा चार टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 2d होता है, d नहीं होता. ठीक है. सो सम इज 50 यानी कि ये 50 है, 3d से 3d और d से d कैंसिल. सो 4a is equals to 50 and the value of a comes out to be 25 by 2. Is that clear? आगे बढ़ते हैं. लिखा है in which the greatest number means a plus 3d, greatest number is a plus 3d is 4 times the least. 4 times the least means ये least number है. So the greatest number is a plus 3d which is equals to 4 times the least number. ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं. So a plus 3d is equals to 4a minus 12d. a को राइट हैंड साइड में और 12d को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए. 4a minus a is 3a and 12d plus 3d is 15d. So 12 plus 3 is 15d. So a comes out to be 5d. This is the value of a. अब यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास है 25 by 2. इसे सब्स्टिट्यूट करिए. 5d is equals to 25 by 2. So the value of d is 5 by 2. Now tell me what is the first term? First term is a minus 3d. So a minus 3d की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 25 by 2 minus 15 by 2 that is 10 by 2. So the first term comes out to be as 5. Similarly, you can put the values of a and d to get the value of second, third and fourth term. So यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि थर्ड एक्सरसाइज जो चल रही है सेकंड के बाद, इसके हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन क्वेश्चंस कर लिए हैं. आप लोगों ने शीट ऑलरेडी देखी हुई है. तो टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस हैं. लेवल 1 के मैंने तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा दिए. आगे अब लेवल 2 के फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12. यानी AP के 3 नंबर्स का सम 12 है एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288. सो अगर हमारे पास AP के 3 नंबर्स का सम गिवन है, सो 3 टर्म्स हम लेंगे a minus d, a और a plus d. The sum is given as 12. So the value of a comes out to be 4. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा. नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288. क्यूब का सम यानी a minus d का होल क्यूब प्लस a का होल क्यूब प्लस a plus d का होल क्यूब. This is given as 288. Now put the value of a to get the value of d.
सो दिस इज 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 64 प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 288। यहां पर आप देखिए 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब। मैं एक बार फिर से फॉर्मूले समझा दूं। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b and a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab bracket a minus b. So after substituting these formulas, means after putting these formulas, you can easily get the value of d to further solve the question. Okay, I hope आप इसे आगे continue कर लेंगे। तो now अब इस question में, इस exercise में दो questions बचे हैं, 5th और 6th। तो I hope वो question आप लोग solve कर पाएंगे और in case doubt आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट समझा दें ताकि हम अगली क्लास में उसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दें। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो है एपी के सम से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ भी चुका है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म और nth टर्म और जनरल टर्म। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 19.4th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पीछे का सारा काम कंप्लीट करिए। डाउट्स हो तो वो निकाल के मुझसे पूछिए और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।